roads, not just for those who are in their vehicles, but also for those who are walking on these roads. Over 1,800 people have lost their lives in pothole-related incidents in 2022 alone in India. But for an MP minister who is in charge of the roads, potholes are here to stay forever with us. Rakesh Singh, who is the PWD minister, has shockingly claimed that as long as there are roads, there will be potholes. Now, take a moment to register that. According to this Mantri, there is no road in the entire world which is pothole-free, be it in India or the world. So expecting the Madhya Pradesh government to provide us with roads without holes is like hoping for a dream to come true, which is not happening. The minister's defense is that there is no technology, at least in their knowledge, that can ensure pothole-free roads, and hence when it rains, the roads will break no matter what they do. आपने कहा कि सीधी में नीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया, ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे? विभाग की अपनी भी सीमाएं होती हैं। पहले की तुलना में अगर बजट में कमी हो तो आपका कहने का अधिकार है। बजट में भी कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सड़कों की लंबाइयां भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ उसको जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में तो हमारी बड़ी योजनाएं हैं। Now, the MP minister was responding to a question that why has the government failed to take stock of a viral video that highlighted the pothole menace in the state. And Rakesh Singh, in a brazen manner, said that it's not possible to act on every complaint and that people should accept that the PWD has its own set of limitations. This admission of helplessness has given political ammunition to the Congress party, which says that the BJP government's legacy is all about giving bad roads and potholes to the state. जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे, ये कहना है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी का। अब ऐसे शब्द राकेश सिंह जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बोल रहे हैं, गड्ढों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अब जनता डिसाइड करेगी और जनता भी सब देख रही है कि ये गड्ढे वाली सरकार जो गड्ढों को प्रोत्साहित कर रही है, गड्ढा टूरिज्म को प्रोत्साहित कर रही है, उसका क्या करना है। जनता सब खुली आंखों से सुन रही है कि ये कुछ नहीं कर सकती सरकार। खराब सड़कें और गड्ढे यही इनकी देन है। Now, in order to reveal the extent of the problems that people are facing due to potholes, Times Now went to the ground in the capital, Bhopal, and even in locations as posh as the Arera colony, there are massive potholes on the roads, causing major inconvenience to the commuters and the public. यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरेरा कॉलोनी का कहा जाए तो भोपाल का सबसे पॉश इलाका है और यहाँ पर सड़कों पे कई फीट गड्ढे हो गए हैं और अब उनके समतलीकरण का काम चल रहा है। दिन में सड़क रोककर इस तरह से क्रेन लगाकर और बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से सड़क के समतलीकरण का काम चल रहा है। हालांकि लंबी शिकायत के बाद कई दिनों से ये समस्या यहाँ पर थी, लेकिन आज इसके समतलीकरण का काम अचानक से शुरू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रास्ते पर जाम की स्थिति बन रही है और जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की प्रमुख सड़क की है। इस तरह से देखिए जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों से वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से जाम की स्थितियां बन रही हैं। So this is the state of the roads, and imagine without any accountability whatsoever, the minister goes on to say that if you want roads, then you have to accept the potholes as well, because there is no technology whatsoever that has roads without any potholes. Take a look at what he said. जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं।
लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। My colleague Makrant is joining us on the broadcast. In fact, he visited the site where you could see several potholes, even in the posh locations, in multiple locations across Bhopal. And this is the capital that we're talking about. Makrant, the situation was really bad. People have been suffering and they were looking at the minister for some answers. But clearly, he just went on to say that it's normal, that it is acceptable. Has there been any change in his reaction after the backlash that he has faced? नहीं, उनके रिएक्शन में किसी तरह का कोई चेंज हमने नहीं देखा। बाद में भी जब हम उनसे कैमरे के अलावा बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तब भी उनका स्टैंड यही था कि दुनिया की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसपे गड्ढे नहीं होते, या फिर भोपाल की या ऐसी कोई सड़क इतनी मजबूत नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो सके। इसको लेकर के हमने भी बार बार सवाल किए कि उनका ऐसा ना वो कहें कल को कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो इस बात पर कायम थे कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस टेक्नोलॉजी, उनके पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे गड्ढे रोके जा सकें। उनका तर्क ये था कि कभी कभी रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वालिटी लो होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको पास कर दिया जाता है। ये सारे फैक्ट्स वो जानते हैं और उन्होंने ऑन कैमरा इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि रोड पर गड्ढे होते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। हमने बार बार उनसे यही सवाल किया कि क्या वो अपनी इस बात पर कायम है कि सड़कों पर गड्ढे होते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सड़कों पर गड्ढे होते रहेंगे, इसका कोई इलाज उनके पास मौजूद नहीं है। तो जाहिर है अगर पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री ही अगर खुद इतना असहाय खुद को महसूस कर रहा है, तो आम जनता तो उम्मीद छोड़ दे कि उसको बिना गड्ढों की कभी सड़क मिलेगी। बारिश के मौके पर सड़क पे गड्ढे होते हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जनता टैक्स भरती है, अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देती है ताकि उन्हें अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिजली, अच्छा पानी मिल सके। लेकिन अगर मंत्री ही इतना बेबस होकर, असहाय होकर ये बात कहेगा कि हम देना हमें संभव नहीं है, सरकार ये सुविधा जनता को नहीं दे सकती, तो फिर जनता के मन में एक निराशा आती है। और कांग्रेस को भी एक मौका मिला है अपनी बात रखने का कि अगर इस तरह से सरकार जवाब दे रही है कि उनके पास गड्ढों का कोई इलाज नहीं है, तो जनता अगले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ये कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन जो मंत्री का बयान है वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला बयान है, क्योंकि आम जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो उन्हें साफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, अच्छी सड़क देगी चलने के लिए। लेकिन खुद ही मंत्री बेबस है और कह रहे हैं कि अगर गड्ढे हैं तो सड़क है तो गड्ढे होंगे ही। Okay, all right. Makrant, thank you for joining us with those details. In fact, when you visited the ground as well, you saw the potholes, and imagine the minister saying, we can't do anything about it. But with that, let's